معاملہ یہ ہوتا ہے عید کا دن مسلمان نوجوان اپنے آپ میں غلط کاموں کو انجام کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم غلط کاموں کو انجام دو، فلمیں دیکھنے کے لیے جاؤ، جاشوں کے بازار کو گرم کرو۔ عید کا دن اتنا معتبر، اتنا بابرکت دن ہوتا ہے جس دن اللہ کے تم مہمان بنائے جاتے ہو۔ اسی غوث پور کی زمین پر جیت پور کی زمین کی تاریخ اٹھا لو۔ اگر جیت پور غوث پور کا پردھان اپنے جہاں آپ کو دعوت دیتے نا تو یہی غوث پور والے فخر کرتے ہیں آج پردھان نے مجھے دعوت دی تھی، آج ہم پردھان کے مہمان تھے۔ کوئی نیتا ہمیں دعوت دے دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں آج نیتا جی کے مہمان تھے۔ کسی ڈاکٹر نے ہمیں انوائٹ کر لیا تو ہم کہتے ہیں آج ڈاکٹر کے مہمان تھے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، تو ڈاکٹر کا مہمان بن کر فخر کہتا ہے، تو اپنے آپ میں انجینئر کا مہمان بن کر فخر محسوس کرتا ہے، تو پردھان کا مہمان بن کر فخر محسوس کرتا ہے۔ عید کا دن اتنا بابرکت دن، اتنا پاورفل دن ہوتا ہے کہ عید کے دن مسلمان کسی اور کے مہمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہی عید کا دن ہے مسلمانوں جس دن پوری دنیا کا مسلمان خوشیاں مناتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کاشان خلافت پر لوگ عید کے دن اپنے آپ میں ادھر ادھر اپنے آپ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسوں کے قطرات کو لے کر دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب نبی آخر الزمان کے صحابہ نے دیکھا ہے، نبی کے تابعین نے دیکھا ہے، حقیقت میں حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، یا امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو پوری دنیا کا مسلمان خوشیاں منا رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے، یا امیر المؤمنین آپ کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مسلمانوں آنکھوں میں آنسوں کے قطرات کو لے کر کس طریقے سے اپنے آپ میں اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے دروازے کو کھول کر کہتے اے لوگو، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے۔ جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، جن کے روزے جن کے صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، ان کے لیے تو آج عید کا دن ہے، مگر جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دے دی گئی، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دے دی گئے، ان کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، وَأَنَا لَا أَدْرِي مِنَ الْمَقْبُولِينَ أَم مِنَ الْمَطْرُودِينَ، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے میرے روزوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں، میری نمازوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں، میرے صدقات و خیرات و زکات کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے شیاطین کو سو دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر شرابی تائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تائید میں رب کائنات نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کو نازل کیا ہو۔ سن مسلمان، اگر حضرت عمر بن خطاب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی تو کس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ کس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، مگر حضرت عمر بن خطاب امت محمدیہ کو پیغام دے رہے ہیں، اے امت محمدیہ میں زندگی گزارنے والوں، اپنی نماز پر کبھی فخر نہ کرنا، اپنے روزوں پر کبھی غرور نہ کرنا، اپنی تقوی طہارت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آنکھ سے آنسوؤں کے قطرات کو جاری کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا۔ اس لیے کہ جب مسلمان رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما کر اس پر رحمت نور کی بارش تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، گھبرا نہیں رہے نا؟ ہاں میں تھوڑا گھبرا رہا ہوں کیونکہ بار بار لوگ فون کر رہے ہیں، لیکن 2-3 منٹ 4 منٹ اور سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ میں تو غوث پور برابر آتا ہوں، ہے نا؟ یہاں کا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہ پہچانتا ہو، صحیح ہے؟ ہاں ہر کوئی پہچانتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں 10 منٹ بھی بول دوں تو لوگ کہیں کہاں اتنا کم بولے، ہے نا؟ کہیں گے کہ یہاں نہیں بولیں گے، کبھی جمعہ بلا لیں گے، ہے نا؟ مسجد میں تقریر کر دوں گا، صحیح ہے؟
हाँ, तो हजरत मुहतरम में अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह के वलियों की मज़ार जो है ना, यहाँ से अपने आप में अकीदत व मोहब्बत का नजराना जरूर पेश किया करो, इसलिए कि ये जो मज़ारात औलिया है भारत की ज़मीन पर, ये हमें अता करने के लिए भेजे गए हैं। हकीकत में मुसलमानों, इन बुजुर्गों से मांगने का सलीका होना चाहिए, इन बुजुर्गों से मांगने का तरीका होना चाहिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते कि वली कामिल हमें ये दे तो फौरन पूरा हो जाएगा। नहीं, मुसलमान मांगने का सलीका होता है, मांगने का तरीका होता है। एक बेटा ना जब अपने बाप से कुछ मांगता है ना, तो किस तरीके से अपने बाप को दुलार करता है, प्यार करता है। अपने अब्बा से कहता है अब्बा फला काम इस तरीके से कर, तो जब मुस्कुरा कर कहता है ना, अकीदत व मोहब्बत में कहता है, तो बाप भी उसकी बातों को मान जाया करता है। लेकिन अगर वही अपने आप में अपनी मनमानी कराना चाहे ना, तो बाप भी उस अपने बेटे की मनमानी नहीं मानता है। तो बता मुसलमान, ये अल्लाह के वली है, ये रब्बे कायनात के दोस्त हैं, ये रब तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदे हैं। अगर इनकी बारगाह में तुम ठीक तरीके से मांगोगे तो इनकी बारगाह से जरूर मिलेगा, मगर मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए। अब मांगने का तरीका सलीका कैसे होना चाहिए? मिसाल के तौर पर गौसपुर की जमीन पर हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। आप इस मज़ार अक़दस को देखें, ठीक इसी की बगल में थोड़ी दूर पर अल्लाह के घर का क़याम किया गया है। आप इसी तरीके से हिंदुस्तान की जमीन पर अलग अलग मज़ारों का जायजा ले ले। अभी रमजान से पहले मैंने हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी की चौचा मुक़द्दसा के जो पीरो मुर्शिद है ना, हुजूर अलाउल हक पंडवी की बारगाह में मैं हाजिरी देने के लिए, जब मैं मालदा बंगाल के जलसे में गया था तो मैं उनकी बारगाह में भी हाजिरी देने के लिए गया। उनकी मज़ार के बगल में भी अल्लाह के घर की तामीर है। फिर उन्हीं के पीरो मुर्शिद हुजूर अलाउल हक पंडवी के पीरो मुर्शिद का नाम हुजूर सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद है। ए मुसलमानों, उनकी मज़ार अक़दस पर गया ना, जिनका मज़ार मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जानते हो वहां पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मज़ार अक़दस के ठीक बगल में अल्लाह के घर की तामीर है। आप आ जाएं मखदूम सिमनानी की चौचा की बारगाह में, की चौचा मुक़द्दसा आप गए होंगे। मखदूम पाक के मज़ार के बगल में मस्जिद है, नीचे मस्जिद है। इसी तरीके से आप बहराइच शरीफ चले, बहराइच मुक़द्दसा की जमीन पर जब आप सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए जाएंगे ना, तो मज़ार के ठीक सामने आपको मस्जिद दिखेगी, अल्लाह का घर दिखेगा। इसी तरीके से आप देवा शरीफ चलिए, वारिसे देवा की मज़ार अक़दस को देखिए, जहां वारिसे देवा का मज़ार है उसी के ठीक बगल में अल्लाह के घर की तामीर है। इसी तरीके से आप आगे बढ़कर बरेली मुक़द्दसा की जमीन पर पड़ जाइए, शहर बरेली के अंदर जहां पर इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का मज़ार है। मज़ार के ठीक सामने अल्लाह के घर की तामीर है। अब मुसलमानों, कहीं और की बात ना करते हुए मैं हिंदुस्तान के राजा हिंदल वली, जिनके सदके में हिंदुस्तान के वलियों को वलायत मिली है, ये बुजुर्गान दीन जो आपकी निगाहों के सामने दिख रहे हैं, ये उसी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। मुसलमानों, आप गरीब नवाज के मज़ार पर गए होंगे, अजमेर गए होंगे, आपने देखा होगा कि मज़ार अक़दस के ठीक सामने अल्लाह के घर की तामीर है। पता क्या चला कि इन बुजुर्गों के मज़ार अक़दस के बगल में जो अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, उसका मतलब, उसका माना ये है कि मुसलमान को पैगाम दिया जाता है कि अगर इन बुजुर्गों से कुछ मांगना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, तो पहले रब की बारगाह में जाकर सजदा करो। अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के बाद फिर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर हाजिरी दो, मखदूम पाक के मज़ार पर हाजिरी दो, आला हजरत अज़ीमुल बरकत के मज़ार पर हाजिरी दो। जब नमाज की अदायगी करके इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी पेश करोगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हारे सजदों के सदके तुफैल में उस हाजिरी को कबूल फरमाकर तुम्हारी तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? तो मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। आओ मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों, इन बुजुर्गों से हमें क्या पैगाम मिलता है, इन बुजुर्गों से हमारी क्या अकीदत होती है। इन बुजुर्गों से हकीकत में मुसलमानों मोहब्बत का पैगाम मिलता है, अकीदत का पैगाम मिलता है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी हाजिरी देने के लिए जाओ ना, तो अपने दिल को साफो शफाफ आईने की तरह धुल कर जाने की कोशिश किया करो। आपका दिल कब
अपने आप में धुला रहेगा। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आप किसी से बुग़्ज़ व इनाद ना रखेंगे, किसी पड़ोसी को सताएंगे नहीं। और जानते हो आज इस उर्स मुक़द्दस का यही पैगाम है कि अपने पड़ोसी को अपने आप में उनसे बुग़्ज़ व इनाद ना रखो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करो। जानते हो जो मुसलमान अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करता है ना, रब्बे कायनात उसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी कब्र पर अजाब को ना नाजिल करे, तो एक मुसलमान छोटा सा काम है, अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक पेश किया करो। पड़ोसी को अपना भाई समझने की कोशिश किया करो। पड़ोसी को अपने आप में अपना गुलाम या दुश्मन समझने की कोशिश ना किया करो। इस गांव के अंदर तुम जब तक जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते रहोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में चूमती हुई नजर आएगी। जिस दिन बिखरोगे ना, ये दुनिया तुम्हें अपने आप में मिटाने की कोशिश कर देगी। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर तुम्हें अपने आप में अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करना होगा। आओ मैं आपको बताता चलूं हिंदल बनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी के बारे में। ए मुसलमानों, ईद का दिन चल रहा है, ईद का महीना चल रहा है, शव्वाल का महीना चल रहा है। अभी एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ है ईद के दिन का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम और आपको इन बुजुर्गों की बारगाह से क्या लेना चाहिए, इन बुजुर्गों की बारगाह से हमें अल्लाह क्या अता करता है। आओ गरीब नवाज की बारगाह में मैं आपको लेकर चलो। ए मुसलमानों, हिंदल बनी ख्वाजगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनकी उम्र मुबारक अभी 8 से 9 साल की है। हकीकत में 8 से 9 साल की उम्र मुबारक है। ईद का दिन आया है। आज हमारे यहाँ जब ईद का दिन होता है ना, हमारे घर के बच्चे सबसे ज्यादा खुशी और मसरत और शादमानी में डूबे रहते हैं। बच्चों को जानते हो, हम कपड़ा भी ला दे, सब कुछ ला दे ना, बच्चे की हमेशा कमी रहती है। वो सोचता है क्या खरीद लूं, ईद का दिन है। ईद का दिन बड़ा खुशियां मनाने वाला दिन है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे जमाना में 8 से 9 साल की उम्र मुबारक में ईद का दिन आया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरीके से ईद के दिन की खुशियां मनाने पर आमादा है और किस तरीके से एक पैगाम दुनिया वालों को दे रहे हैं। ईद का दिन है मुसलमानों, अपने आप में अच्छे कपड़े को पहनते हैं खुशबू लगाकर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हो संजर की जमीन पर ईदगाह की तरफ जाते हैं, अपने कदम को बढ़ाते जा रहे हैं। चलते चलते उनकी निगाह क्या देखती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप हज़रात मेंबर रसूल पे देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान जनाब सद्दाम दाई साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। हजरत मोहतरम सुनेंगे थोड़ी देर, 2-4 मिनट, यही वाकया पूरा कर लूं, सुनेंगे? हाँ, तो हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। ईद का दिन है जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मररत और शादमानी में डूबा रहता है। ए मुसलमानों, वो दिन इतना हसीन और जमील होता है ना, हर कोई खुशियां मनाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे जमाना भी ईद का दिन आया है। आज हमारे यहाँ ईद का दिन आता है, हम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेते हैं, अपने घर वालों के लिए कपड़े खरीद लेते हैं, मगर कभी पड़ोस में नहीं पूछते कि तुम्हारे बेटे का कपड़ा बना है कि नहीं। कभी यतीम से नहीं कहते कि यतीम तुम्हारा कपड़ा आया है कि नहीं। मुसलमान, जब ईद का दिन आए ना, जहां अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदा करो, वहीं अपने आप में पड़ोस के यतीमों के लिए भी कपड़े ले लिया करो। अपने बच्चों के लिए अगर 2000 का कपड़ा ले रही हो ना, तो अगर तुमसे ना हो सके तो 1800 का कपड़ा अपने गाँव के गरीबों के लिए ले लिया करो। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं की बरकत से तुम्हारे घर में रहमत नूर की बारिश अता करेगा। ईद का दिन है, खुशियों मसरत और शादमानी वाला दिन है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कदम को बढ़ाकर ईदगाह की तरफ जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक नौजवान है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जो अपने आप में फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, जो नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस नौजवान के करीब पहुंचकर उससे सलाम पेश करते हैं। वो नौजवान सलाम का जवाब देता है। मुसलमानों, यही से एक अंदाजा लगाओ, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खानदान अहले बैत से ताल्लुक उनका है। मुसलमानों, नबी के दुलारे हैं, नबी के शहजादे हैं, मगर सलाम में किस तरीके से पहल कर रहे हैं। आज हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना, तो हम गरीबों को हिकारत की निगाह से देखने पर आमादा होते हैं, गरीबों को हम अपने पैर पर रोकने पर आमादा होते हैं। याद रख मुसलमान, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उसी वक्त मिलती है जब हम किसी दिन किसी गरीब की मदद करते हैं, तब हमें खुशियां ज्यादा मिलती है। अगर यकीन ना हो तो किसी दिन ये काम अंजाम देकर देखना,
किसी यतीम के लिए कपड़े बनवा देना, उसके बाद जब रात की तन्हाई में पहुंचेगा ना, हकीकत में पूरी थकान ऐसे ही उतरती हुई नजर आएगी। अल्लाह इतना सुकून तुम्हें देगा, इतना सुकून देगा कि जिंदगी में किसी काम में इतना सुकून नहीं है। इसलिए गरीबों की मदद किया करो, यतीमों की मदद किया करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस नौजवान से सलाम करने के बाद कहते, नौजवान आज तो ईद का दिन है, पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है। हर कोई ईद की मुबारकबादी पेश कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी दे रहा है और अच्छे लिबास को पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहा है। तेरा लिबास अपने आप में फटा पुराना है, तेरे बाल गर्दो गुबार में लिपटे हुए हैं। जानते हो उस नौजवान ने कहा था, मेरे भाई हसन सुनो सुनो, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं उनके लिए आज ईद का दिन है, जिनके भाई बहन दुनिया में हैं उनके लिए आज ईद का दिन है, जिनके रिश्तेदार दुनिया में हैं उनके लिए आज ईद का दिन है। अगर मेरी आंख सलामत होती ना, मैं अपने आप में आंखों से देख सकता, तब मेरे लिए ईद का दिन होता। अल्लाह ने मेरी बीनाई को भी छीन लिया है, मेरे माँ बाप का साया भी दुनिया से चला गया है, और मेरे जो रिश्तेदार थे ना, मेरी गरीबी को देखकर मेरी गुर्बत का मजाक बनाते हुए मुझसे रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। आज दुनिया का यही दस्तूर बता रहा है मुसलमानों, अगर हमारे रिश्ते में कोई गरीब होता है तो हम उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, कोई रिश्तेदार गरीब होता है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन अगर कोई अमीर दूर से रिश्तेदार लगे तो उसको हम इज्जत और तकरीम से नवाजने पर आमादा होते हैं, उसका नाम हर जगह यूज करने पर आमादा होते हैं। मेरी कौम के लोगों, अमीरों के नाम को यूज करने से बेहतर है तुम गरीब को अपने दरवाजे पर बुलाकर इज्जत देने की कोशिश करो, गरीब से सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था, गरीब नवाज ने उसकी कलाई को पकड़कर कहा, चलो मेरे घर, मैं तुझे बाप का प्यार दिलवाऊंगा, मैं तुझे बहनों का दुलार दिलाऊंगा, मैं तुझे भाई का प्यार दूंगा, मैं तुझे माँ की ममता दिलवाऊंगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी उस नौजवान की कलाई को पकड़कर अपने घर को लाते हैं, खूब अच्छे तरीके से उसको गुस्ल दिलवाते हैं। गुस्ल दिलवाने के बाद, लिबास पहनवाने के बाद, ए मुसलमानों अपनी अम्मी से कहते, अम्मी मैंने इस नौजवान से वादा किया है कि मैं तुझे माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, बाप का साया दूंगा, भाई का दुलार दूंगा। ए अम्मी तुझे माँ का प्यार देना होगा। माँ ने कहा था, बेटा हसन तू जैसा कहेगा वैसा तेरी माँ करके दिखाएगी। हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा का खानदान है, जो पूरी दुनिया में अपने घरों से किसी को ऐसे ही नहीं भेजा करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस नौजवान को लेकर अपने आप में आगे आगे चल रहे हैं। नौजवान उनकी कलाई को पकड़कर पीछे पीछे चल रहा है। इधर गैब से आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये गरीब नवाज जा रहा है, गरीबों की मदद करने वाला जा रहा है, गरीबों को नवाजने वाला जा रहा है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी उस नौजवान को कलाई को पकड़कर आगे आगे चल रहे थे ना, नौजवान पीछे पीछे चल रहा था और अपनी जुबान से ये कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा है ना। तो हजरात मोहतरम, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे जलसे में जाना है और बार बार वो लोग फोन कर रहे हैं। गोसपुर वालों, मैं आपके यहाँ बराबर आता रहता हूँ, है ना, नाराज नहीं है ना? हाँ, फिर कभी मौका मिला टहलते चलाऊंगा, ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। और मैं जब इधर जलसे में जाता हूँ कभी तो जरूर गोसपुर रुकता हूँ, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके दयार में हाजिरी होगी। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, कारी नवाब साहब, कारी अब्दुल कय्यूम साहब और कारी सकलैन साहब, कारी अब्दुल महबूब साहब, कारी नबी हुसैन साहब, सद्दाम राही साहब को अल्लाह इनके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।